we know about episiotomy today. एपिसोटमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही ओके एज वेल एज आपको केस बुक में भरते समय में एपिसोटमी के बारे में भी कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा. सो हैव अ लुक एट दिस वीडियो कंटिन्यूअसली फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. बट अगेन अ पीस ऑफ एडवाइस, एक कान में लेकर दूसरे कान में मत छोड़ना, रजिस्टर उठा लेना. इसमें कुछ पॉइंट्स जो लिखा है तुम लोग को समझाने के लिए दिया है. ओके सो यू कैन राइट इट साइड बाय साइड, तब याद आ जाएगा. ओके दिस इज व्हाट द लर्निंग, वन ऑफ द प्रिंसिपल इज लाइक you look at the same time you will keep on writing it. If you're going to write like that way, you'll be able to learn so much. Okay, anyway fine. So define episiotomy, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स में पूछा गया है. और name the 4 types of episiotomy. It is like 2 marks again. And write about the post operative episiotomy care. ये भी 2 to 4 मार्क्स इस प्रकार की पूछा गया. टोटली ये 15 मार्क में पूछा जाता है. अदरवाइज इवन एपिसियोटमी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, ऐसे प्रकार की पूछा जाएगा. So whatever it is listed out, you have to make it in a notes and you have to present it. Okay, fine. What is episiotomy is? Epi means it is above or upon. Above मतलब ऊपर है. Otomy माना it is a cut. Incision को कहता है. Any part of the body if it is going to be cut, it is called as an ostomy. Okay, that's a medical terminology. You would have heard about colostomy, whatever the ostomy it is. Like ostomy means it is a cut. So episiotomy is nothing but a surgically planned incision that is a cut on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor. So what is the second stage of labor? Second stage of labor is नथिंग बट जब फुल डायलेटेशन होती है पेशेंट का, मतलब 10 सेंटीमीटर का होने के बाद, जो सर्विकल डायलेटेशन होने के बाद पेशेंट क्या कर आई मीन उसके बाद minimum 2 hours for the primary mother. Okay, it's like 2 hours for the primary mother and half an hour for the multi mothers. मीन्स लाइक एक बेबी का ऊपर डिलीवरी हो गया है तो उसको मल्टी कहते हैं. प्राइमरी इज द फर्स्ट वन. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज लाइक बेबी आते समय में they give an incision, just a simple incision over here. Okay, so that's on the posterior perineum. This is um, this is the perineum actually, right? This is the posterior, this is an anterior vaginal wall. Okay, this is an anterior vaginal wall and this is a posterior vaginal wall. So there's a simple incision over here that is called as an episiotomy. Yes. So this is periotomy because perineum में कट किया जाता है इसलिए periotomy कहता है. और it is considered to be a second degree perineal tear. Means इसका second degree perineal tear के बराबर इसको episiotomy को किया मतलब consider किया जाता है. So what is a perineal tear? Before that let me look at the muscles. यहाँ पर क्या है, क्या क्या इंजरी होती है. Okay, suppose patient को lithotomy position में रख दे. Can you see this one? This is the same physis pubis. Okay, so patient को lithotomy position में जाएगा तो patient इस प्रकार की like upper part will be there. So ये muscles जो है, this is ischiocavernosus muscles in the corner and this is a transverse muscles and again ischiocavernosus, it forms a triangle over here. This is called as an uro means this is urethra and this is what is the vaginal orifice and this is called as urogenital triangle कहते हैं, right? So ये muscles देखो, ये muscles है, this muscles is called as a bulbospongiosus muscles. It's a लेविएटाइन का मसल्स का एक पार्ट होता है. प्रोबेबली एपिसोडमी में देते समय यहीं पर इसको ज्यादा चांसेस है ये इंजरी होने के लिए, राइट? सो दिस विल बी मोस्टली प्रोबेबली इंजर्ड. And again there is an opposite triangle. This is an anal triangle. It is like ऊपर हम लोग यूरोजेनिटल ट्रायंगल देख लिया, नीचे का जो है ये एनल ट्रायंगल हो गया. And this is anus and in between this is a perineal body. What is a perineal body? is a pyramidal fibromuscular mass है, ये मिडल में रहता है. ये जो यूरोजेनिटल ट्रायंगल और जो एनल ट्रायंगल के बीच में रहता है वो केवल उसको सपोर्ट दिया जाए पेल्विक फ्लोर मसल्स को, मतलब ये दोनों को जॉइन करके स्ट्रॉन्ग आई मीन इंटीग्रिटी बना देता है. दैट्स इट. ओके एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम भी कहते हैं बिकॉज टेंडन यू नो राइट, दोनों को बीच में जॉइन करता है. सो सेम थिंग ओवर हियर आल्सो, इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडन ऑफ पेरिनियम. Okay, so I think you understood with this one. Same one. This is a very clear. This is a triangle. Okay, urogenital triangle, and this is an anal triangle. And this yellow color is a perineal body, and which join the urogenital and the triangle one. And baby यहाँ पर आएगा. So जो बल्बो स्पंजों से ज़्यादा तरह से उसको फटने का chances होती है, right? ओके सो सपोज बच्चा यहाँ पर फट जाएगा पेरिनियल के ऊपर, पेरिनियम के ऊपर, पेरिनियल बॉडी के ऊपर यहाँ पर फटने के चांसेस होती है. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू मेंशन.
Okay, fine. So these are the degrees of tear है. So let me know about it what it is. Actually ये 5 mark का important question है. You'll be able to learn it in another video. But right now I'm not going to concentrate on that. But फिर भी कुछ position आपको पता होना चाहिए. As I told you, second degree perineal tear is considered as episiotomy. So according to the classification of obstetrical and anal sphincter injury पे अनुसार में first degree क्या होता है? First degree क्या होता है? It's a perineal skin only. Perineal skin. This is a perineal skin. Okay, यहाँ पर जाया नहीं. This is a perineal body. ओके यहाँ पर ये पहुंचा नहीं है, ओनली स्किन इट का ये हुआ है, राइट. द सेकेंड डिग्री टेयर विल बी द पेरिनियल बॉडी इन्वॉल्व हुआ है. ओके, पेरिनियल कहीं भी कटेगा. ओके, यहाँ भी कटेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंड डिग्री टेयर. बट बात ये है यहाँ एनस के पास पहुंचा नहीं है. एनस ये जो ब्लू कलर वाली है इसको एनस स्फिंक्टर कहता है, राइट. सो यहाँ पर पहुंचा नहीं है. Okay, this is going to be internal and this is going to be external, all right, anal sphincter. Okay, so but second degree tear है, only perineal body होता है. थर्ड डिग्री टेयर कहाँ तक पहुंचा है? anal sphincter external तक पहुंचा है, only external. Okay, एंड सपोज वो 50% के नीचे में है, दैट इज 3A कहता है. 50% के ऊपर टेयर हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर, दैट इज कॉल्ड एज 3B. एंड 3C कब होगा? इंटरनल स्फिंक्टर B पहुंच गया, यहाँ पर हो गया. दिस इज 3, यहाँ तक 3 थर्ड डिग्री टेयर हो गया. बट फोर्थ डिग्री टेयर किसको कहता है? जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एज वेल एज इंटरनल एनल स्फिंक्टर प्लस जो एनल एपिथेलियम यहाँ फट जाती है, इसको बोलते हैं फोर्थ डिग्री टेयर. ओके, बट एपिसोडी में हम लोगों ने क्या किया था? इट इज इक्वल टू द सेकेंड डिग्री टेयर तक है. ओके, दिस इज फॉर्म ओनली पेरिनियल बॉडी तक इन्वॉल्व होता है. सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री बिकॉज एनल स्फिंक्टर के साथ होने के बाद अगेन दैट लीड टू दी, ये स्फिंक्टर कूल जाती है. ओके, दिस इज गोइंग टू बी जैसे लाइक अ रबर बैंड, राइट. जैसे पोटी करना है तो वो रबर बैंड के जैसे क्लोज करके रखेगा. हाँ, पोटी लग रहा है तो तुरंत क्या होगा? वो कूलेगा, तो फिर हम पोटी करके वापस आ जाता है. दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस, राइट. सो बट बात यहाँ पर क्या होता है? ये फट गया तो क्या होगा? तो स्टूल अपना आप कंटिन्यूसली पास करते रहेगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फीकल इनकॉन्टिनेंस कहता है. ओके, फीटल इनकॉन्टिनेंस मतलब कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं यहाँ पर बिकॉज ऑफ इंजुरी ऑफ द स्फिंक्टर, क्योंकि स्फिंक्टर कंट्रोल करने के लिए काम नहीं कर रहा है. ओके, सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट. सेकेंड डिग्री टेयर तक है तो कोई इश्यूज नहीं है. ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एनलार्ज द वेजाइनल इंट्रोइटस, दैट्स अ कॉमन वन. ये इंट्रोइटस को बड़ा करना है. ओके, सो फॉर सेफ डिलीवरी एंड इजी डिलीवरी के लिए. और जो ओवर स्ट्रेचिंग, पेरिनियम माँ का ओवर स्ट्रेच होगा, यहाँ फटने का चांसेस होती है. एट दैट सेम टाइम ये जो स्ट्रेच होगी बेबी आते समय में क्या होगा? प्रेशर पड़ रहा है, उसका ब्लड वेसल्स वगैरह ये प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं. इतनी स्ट्रेन होगा जो पीछे पोस्टीरियर फॉन्टनल्स, सामने जो एंटीरियर फॉन्टनल्स, इसके ऊपर भी प्रेशर हो जाएगा, फटने के चांसेस होते हैं. सो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस भी होने का चांसेस होती है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एपिसोटोमी दिया जाता है. दैट्स ओके, फाइन, राइट. Okay, what are the indications of this one? Is inelastic perineum. As I told you, primary mother or multi mother. Okay, primary means it is a first प्रेगनेंसी, आई मीन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी होती है, तो अब क्या होगा? तो उसका पेरिनियम तो टाइट रहेगी, एवरीथिंग विल बी टाइट. सो दैट इज व्हाई वी से टू द पेशेंट्स, स्पेशली जो थर्ड ट्राइमेस्टर में रहता है, पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज करना है. कीगल एक्सरसाइज क्या होता है? टाइट और रिलैक्स करवाना है. ओके, कम से कम 10-15 बार. मैंने टाइट करने के लिए 1 2 3 4 टाइट करके रहेगा, मतलब 15 तक काउंट करेगा. उसके बाद रिलैक्स करने के लिए जस्ट रिलैक्स आराम से 6 तक काउंट करके उसको करेगा. टाइट एंड रिलैक्स जो पेरिनियल मसल करेगा, थोड़ा बहुत आई मीन इट इज इलास्टिक नहीं होगा, मीन थोड़ा सा स्ट्रेचेबल नहीं होगा, बट बात यह है स्टिल इट विल बी टाइट. सो इन दैट केस प्राइमरी मदर में ही ज्यादा इन इलास्टिक पेरिनियम मतलब रिजिड पेरिनियम होता है, फर्स्ट के इस समय में दिया जाता है. मल्टी में यूजुअली ऑलरेडी रास्ता खुल गया ना, पहली बार बच्चा पैदा हो गया तो इसलिए उसका रास्ता खुला, तो नो इश्यूज विल बी देयर मच इन दैट. ओके, एंटिसिपेटिंग पेरिनियल टेयर. एंटिसिपेटिंग मींस व्हाट यू वांट टू एक्सपेक्ट, किस किस में पेरिनियल टेयर होने का चांसेस है, राइट. तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं जस्ट लाइक अ बिग बेबी.
जो बिग बेबी किस में होता है, स्पेशली जीडीएम मदर, जेस्टेशनल डायबिटिस मदर और डायबिटिस मदर, इसमें क्या होता है माँ का ब्लड में पूरी भर के वहां पर ग्लूकोज है, बट बात है माँ का सेल्स में तो है ही नहीं, ग्लूकोज बहुत कम होगा, राइट। तो क्या करेगा, तो ये ब्लड में जो ये है सीधा प्लासेंटा पहुंचते हैं, और प्लासेंटा से सीधा बेबी को वो पहुंचा देता है ब्लड। सो उस समय में क्या होगा, ये ग्लूकोज पूरा बच्चा पी पी के मैक्रोसोमिक मीन्स बॉडी बड़ा होने का चांस होता है। सो वी हैव टू टेक सम ऑफ द बेबीज, किस किस में बेबी का बड़ा होने का चांसेस है, इन दैट केसेस हम एपिसोड में पहले से प्लान करके रखना है। एंड फेस प्यूबिस डिलीवरी नॉर्मली जो ऑक्सीफुड, ओके, दिस हैज टू बी फर्स्ट डिलीवर्ड। बात ये है यहाँ पर फेस प्रेजेंटेशन होने के कारण से क्या होता है, इंजुरी नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई अ लिबरल एपिसोटमी हैज टू बी गिवन। लिबरल का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा अधिक नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत ज्यादा है नॉर्मल से, ओके। सो लिबरल एपिसोटमी देना है। एंड शोल्डर डिस्टोशिया, एक्चुअली शोल्डर डिस्टोशिया ये तो अबनॉर्मल हो गया, बिकॉज यहाँ शोल्डर बस आ रही है, पहला प्रेसेंटिंग पार्ट हो रहा है, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। बट थिंग इज कभी कभी बेबी का हेड आ जाता है, कभी कभी शोल्डर यहाँ पर अटक जाती है, दिस बिकॉज ऑफ द दिस थिंग इज। सो इन दैट केसेस ओनली यहाँ एपिसोटमी यहाँ पर थोड़ा से और भी देना पड़ता है, ओके। इफ द बेबी हेड इज डिलीवर्ड and then the mother is facing shoulder dystocia, in that case only it can be given. Okay, the next one is a breech presentation, बच्चा उल्टा बैठा है, राइट, उल्टा आ रहा है, ओके। सबसे पहले सेफेलिक आना चाहिए था, बट बात यहाँ पर उसको बटक्स आ रहा है। सो इन दैट केसेस ऑल्सो इट हैज टू बी गिवन, बिकॉज यहाँ आने के बाद जो यहाँ पर देखो थोड़ा से इसका जो ब्रेथ है, आई मीन जो ब्रेथ, हाँ, या इट इज गोइंग टू बी मच मोर देन दी हियर, यहाँ थोड़ा गैप आ रहा है, राइट, थोड़ा से मीन्स इतना मोटा था फिर पतला हो गया, फिर आ रही है प्रेशर, उस समय में प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई टू डिलीवर द हेड विदाउट स्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट, सो एपिसोटमी लिबरली देना इसमें भी जरूरी है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिव डिलीवरी, इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। सो रिमेंबर ये 5 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस एंड ऑल आई विल टीच यू इन लेटर वीडियोस। सो फोर्सेप्स डिलीवरी और वेंट्यूज सक्शन, वेंट्यूज का मीनिंग क्या होता है, सक्शन, सक्शन का मीनिंग है यहाँ पर जो प्रेशर देके, ओके, यहाँ पर प्रेशर देने के बाद यहाँ पर इसको लगाता है, दिस इज एन एंटीरियर फोंटेनल एंड दिस इज अ पोस्टीरियर फोंटेनल, इसके बीच में इसको लगाता है, अदरवाइज ये सक्शन पूरा इसमें लगा दिया तो पूरा अंदर की ऑर्गन्स पूरा इसमें आ जाएगा। तो इसलिए जो सक्शन और वैक्यूम असिस्टेड है इसमें आपको एपिसोटमी अच्छे से देना ही है। एंड फोर्सेप्स इज ऑल्सो अनदर इंस्ट्रूमेंट, ओके, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को कम करवाने के लिए इसको भी यूज किया जाता है। सो इन दैट केस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किया जा रहा है। अल्टीमेटली दिस गिव्स एन इंजरी टू मेनी थिंग्स, बट बात यह है उसके पहले आराम से हम एपिसोटमी बड़ा से दे दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड फाइनली द प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी, फॉर एग्जाम्पल मल्टी मदर है, बेबी नहीं आ रहा है, एपिसोटमी हुआ होगा पहले, तो अगेन शी नीड्स वन मोर एपिसोटमी इज दिस टाइम ऑल्सो, अदरवाइज अगेन दैट विल बी टाइट रहेगा बिकॉज कार बन गया होगा। एंड मोर ओवर वहाँ पेल्विक फ्लोर में कोई भी और ऑपरेशन है वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर इंट्रोइटस में कोई प्रॉब्लम हो, पहले से बना के रहा होगा, तो समथिंग और द अदर पेल्विक फ्लोर रिपेयर है, नहीं तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो भी हो रहा है, इन दैट केसेस एपिसोटमी देना जरूरी है, ओके। द नेक्स्ट वन इज टाइमिंग्स, कब देना है, ये यूजुअली वाइवा का क्वेश्चन होता है, ये पूछा जाता है ये कब देना पड़ेगा, दिस इज ड्यूरिंग द क्राउनिंग। क्राउनिंग कब देना पड़ेगा, जब बल्जिंग होता है, बल्जिंग माना पुशिंग, ओके, पुशिंग करते समय में उस समय में देना पड़ेगा जब माँ का कंट्रैक्शन होती है। अब कंट्रैक्शन के तब पता चलेगा, पेशेंट आ ऊ चिल्लाने से कंट्रैक्शंस नहीं पता चल जाते, कभी कभी पेशेंट्स लोग को तो कंटिन्यूसली उसको दर्द होते रहेगा उस समय में, सो डोंट कंफ्यूज विद दैट। सो हाउ यू आर सपोज टू चेक कंट्रैक्शन इज यू हैव टू कीप योर हैंड ऑन द एब्डोमेन, वो टाइट है लूज है वो देखना पड़ेगा, जब टाइट है तो कंट्रैक्शन है, सीधा उस समय में एपिसोटमी देना पड़ेगा। सो यहाँ से 3 से 4 सेंटीमीटर का बच्चे को सिर्फ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्राउनिंग, तो उस समय में आपको एपिसोटमी देना है, ओके। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर द मैटरनल एंड द फीटल। सो सबसे पहले क्लियर कंट्रोल इंसिशंस, ओके, सो जैसा आई वाज टेलिंग यू लाइक यूरिथ्रा है, ये वेजिनल ओरिफिस है, ओके, दिस इज अ वल्वा,
Okay, so what happens is this is a minora, right, and this is a majora. So what thing goes over here is a very clear. See the cut लिया बस खत्म, आराम से सूचर लगा दे या बस खत्म. बट बात ये है सपोर्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, पेरिनेल टेयर हो जा रहा है, पत्थर फत्तर करके हम पकड़ मीन्स इधर उधर हो जाएगा, तो हम लोग को उसमें टाका लगाने में भी प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है. सो इट्स क्लियर एंड कंट्रोल इंसिजन इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस वन इज reduction in the second stage of labor. As I told you, this is a primary mother. It is 2 hours होती है सेकेंड स्टेज, और जो मल्टी में उसको आधा घंटा होता है 30 minutes, राइट. सो इन दैट केसेस इसको रिड्यूस करने के लिए वो करना है. एंड रिडक्शन इन द पेल्विक फ्लोर ट्रॉमा, तो ट्रॉमा चांसेस होती है इधर उधर टच होके वो होने का चांसेस होते हैं. इन दैट केसेस इट हैज टू बी रिड्यूस करने के लिए दो इट हैज टू बी डन. ओके, सो अगेन what is a fetal? Fetal में क्या है? It is minimizes the intracranial injuries, especially premature babies and after coming head of the breech. So breech में तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, जैसे उसका शोल्डर पहले आ जाता है, उसका जो डायमीटर थोड़ा बड़ा है, बट बात उसके बाद तो नेक आते समय में थोड़ा से उसका जितना ब्रॉड हुआ वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर हेड आने के समय में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. सो इन दैट केस इट इज ब्रीचेस, ब्रीच प्रेजेंटेशन में उसको देना ही देना है. बट बात एक इंट्राक्रेनियल इंजुरीज होने के चांसेस होते हैं. ओके, जस्ट बिकॉज प्री मेच्योर बेबी में ऑलरेडी तीन तीन उसका ये है, तो फोर्स करते आते समय में बच्चा जल्दी मतलब फोर्स हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, तो चांसेस होते हैं उसका क्रेनियल इंजरीज होने के. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एपिसोड में दिया जाता है. ओके, okay. What are the types of episiotomy incisions? Is medial or lateral, mediolateral and J shaped. Commonly जो यूज किया जाता है क्या क्या है? Medial और mediolateral. ये पूरा band है. I'll tell you what about this, and this is not at all advised at all. Okay. So medial means it is the incision starts from the center of the forecheck and extends posteriorly along with the midline from about 2.5 centimeter. ओके, दिस इज व्हाट दिस वन इज. ये 2.5 सेंटीमीटर तक यहाँ करेगा, बट बात ये एन एस यहीं पर है, इसके ऊपर है वो, राइट. ओके, फाइन. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस वन? मीडियल इज, मीडियल माने इट इज मिडल, सीधा सीधा. मसल्स ज्यादा तो है नहीं, ओके, इसलिए कट नहीं हुआ वहां पर. ब्लड लॉस भी बहुत कम है. ओके, रिपेयर भी बहुत ईजी है बिकॉज वो सीधा सीधा, ये सीधा कटा है, राइट. वो सीधा सीधा सूजर करने में भी इजी पड़ेगा. पोस्ट ऑपरेटिव कंफर्ट इज ओके, फाइन, नॉट मच प्रॉब्लम इन दैट. हीलिंग इज सुपीरियर, जल्दी हो जाएगा. बट वूंड डिस्ट्रप्शन इज वेरी रेयर. ओके, वूंड वूंड इधर दोनों लगाया है तो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा उसका. ओके, so dyspareunia is very very rare. What is dyspareunia? Is nothing but actually the literal meaning is a painful intercourse. बट बात यह है जो पेशेंट एक बार एपिसोड में हो गया, राइट, आई मीन मिडियल वाला जो हो गया, उसके बाद क्या होगा? सपोज कैथीटर भी डालेंगे, ओके, पेशेंट को दर्द होने लगेगा, पीपी भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम होने लगेगा. सो देयर विल बी प्रॉब्लम विद दैट इज लाइक व्हाइल इंसर्टिंग इट, वो पेनफुल होगा. ओके, that's more I mean it is not rare, it is rare. Okay, dyspareunia is that, but it is more found in other ones. Okay, demerits क्या है? Extension is often may involve the rectum also. That's what the problem is. So यहाँ पर vaginal orifice है, यहाँ पर ये है, right? So this is what is vulva. So सीधा यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है, सीधा जाके यहाँ पर एनल स्फिंक्टर में लगा सकता है. That's what I showed you in the perineal tear, right? वो वहाँ पर फट जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा. 2.5 सेंटीमीटर है, थोड़ा से और खींचेंगे तो बच्चा और खींचने के बाद यहाँ पर लास्ट में it will go there. नॉट सुटेबल फॉर मैनिपुलेटिव डिलीवरी. मैनिपुलेटिव डिलीवरी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल हेड निकल गया, बॉडी नहीं आ रहा है, तब क्या करेगा? तो पीवी करते दो उंगली, आई मीन हैंड पकड़कर, हैंड को मीडियल साइड से वो लेके आता है. सपोज यहाँ पर हैंड है, सिगरेट पैशन में उसको हाथ पकड़कर बच्चों को यहाँ पर पकड़ के इसको मीडियली लेके आके बाहर करेगा. सो दिस इज अ मैनिपुलेटिव डिलीवरी. सो यू आर गोइंग टू कीप ऑन हैंडलिंग इट. इन दैट केसेस मीडियल वाला बिल्कुल सपोर्ट नहीं है. सो यू शुड नॉट यूज दिस, अदरवाइज सीधा सीधा और टेर होने का चांसेस होते हैं. अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन. सो अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है क्या? सपोज पेल्विस इधर है, ये आगे एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है. सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पर सीधा हम ये कर रहे हैं. सो इन बिटवीन यहाँ पर ऑक्सीपिटल है. दिस इज अ नॉर्मल प्रेजेंटेशन. एल ओ, oh this is anterior, sorry, this is a posterior. Okay,
दिस इज अ पोस्टीरियर. सो यहाँ पर एंटीरियर ये है, यहाँ पर यू विल बी हैविंग ऑक्सीपिट. सो दिस इज एल्बो इज द नॉर्मल पोजीशन इज, अदरवाइज आरओ ये हो जाएगा, ये भी नॉर्मल पोजीशन है. बट बात ये पीछे का जो पोजीशन हो जाएगा, दिस इज I'm sorry, I confused with this one. Okay, this is abnormal position. Abnormal position में क्या होता है, ये पीछे वाला जो posterior, occipital posterior जो आती है, so that's going to be an abnormal position is. So in that cases it is not real suitable. And one more is presentation. Presentation, normal presentation क्या है, बेबी का हेड पहले cephalic आना चाहिए, and nothing else other than that. Okay, suppose उसका हाथ आ जा रहा है, ना शोल्डर आ जा रहा है, ना पैर आ जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, that is abnormal presentation. Presentation nothing but the presenting part at the lower pole of the uterus is called as a presentation, right? So in that also medial एपिसोडमी में नहीं यूज किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट वन इज अ लैटरल. लैटरल क्या है, इंसिशन इज मेड फ्रॉम अबाउट 1 centimeter away from the center of the fortune and extends laterally. Drawbacks are chances for the Bartholin ducts का है, totally condemned. Okay, so you should know what is a forchet is. Forchet is nothing but labia minora दोनों join करते हैं, that is a forchet, right? So forchet पे से यहाँ से लेफ्ट से 1.5 सेंटीमीटर आसपास में इसको कट किया जाता है. बट बात ये है, एज इट वाज सेड, बार्टोलिन ग्लैंड, सपोज ये इंट्रोइटस है, यहाँ से सीधा हम लेटरल में कर रहे हैं, ओके 1 सेंटीमीटर ही कर रहे हैं, मान के चलो, नॉट 1.5 सेंटीमीटर. सो बार्टोलिन ग्लैंड कट जाती है, अल्टीमेटली यहाँ पर सूज जाएगा, दैट विल बी अ पेनफुल वन, अगेन दैट विल बी एन इन्फेक्टेड वन हो जाएगा. सो in order to prevent that, it is condemned. So mediolateral is the one. Mediolateral is the common one which is used. So normally क्या करते हैं, RMLE करके डॉक्टर उसमें लिखते हैं. What is RMLE? is right mediolateral episiotomy. Right meaning most of them हम लोग right hand use करते हैं, इसलिए हम लोग पेशेंट को right side में उसको करता है. So that lead to the RMLE. It's mediolateral. So this is a common one which is given liberally because ये मीडियोलैटरल में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लेट मी सी अबाउट दैट, बट बात है इट इज कॉमनली यूज्ड. सो इंसिशन क्या होता है, पीछे डाउन होती है बट आउटवर्ड होती है. ओके, मिड पॉइंट ऑफ द फोर्सेट टू द राइट टू लेफ्ट होती है, इट इज नॉट एट द स्ट्रेट वे. ओके, डायगनली होता है, थोड़ा टेढ़ा से होती है. इट्स नेदर मीडियल नॉर लैटरल, विच रन्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस. ओके, सो दिस इज व्हाट द पिक्चर इज. So यहाँ पर है, okay, this is not in the middle, it is not in the middle medial, it is not in the lateral, it is in between टेढ़ा, it is away at least 2.5 centimeter away from this one. So this is going to be the comfortable one. So ischial tuberosity, okay, this is थोड़ा बहुत नीचे होना चाहिए. So somewhere here it is. So anus और इसके बीच में ये होता है, right? So mediolateral is. So what are the merits of the demerits of the mediolateral are, number one is relatively safely from rectal environment. So rectum के पास में पहुंचने के chances ही नहीं होता, that's why it is very very safe. And if necessary the incision can be extended, थोड़ा बढ़ा सकता है. और demerits क्या होता है, apposition of the tissue is not good. So appositions का meaning है, see look at this is a mediolateral, okay, it is so this is LML, ओके, लेफ्ट मीडियोलैटरल एपिसोटमी. सो इसमें देखो अपोजिशन, समटाइम्स यहाँ पर हम लोग जुड़ दिया है, ठीक है, यहाँ जुड़ने तक कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर मसल्स कहाँ कहाँ क्या है. सो ओनली दैट इज द प्रॉब्लम. अपोजिशन, अपोजिशन मतलब दोनों एक साथ सामने सामने, ओके, तब इजी पड़ेगा हमको सूचर करने के लिए. सो दैट वाज द प्रॉब्लम इज अदर देन दैट दिस not much. Blood loss is little more. ओके, यू शुड नो अबाउट द वीनस ब्लड का जो रप्चर होती है वो कैसे है, और आर्टीरियल का. सो रिमेम्बर दिस इज वीनस का होता है ओजिंग होता है, इट इज ओजिंग मतलब धीरे धीरे बूंद बूंद निकलती है, वीनस का ब्लीडिंग होगा. बट आर्टीरियल होगा जैसे लाइक अ टैप खुला है ना, उस प्रकार की it will like a force and it will come out. Okay, remember only one thing is artery लगा के वहां पर सूचर करना पड़ेगा. अब गॉस पीस में दबाते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा. So itly you have to suture it if it is going to be arterial is. So little more than the medial one. पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट इज मोर द पेनफुल, बहुत पेनफुल होगा पेशेंट का. और इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ वुंड डिस्ट्रप्शंस, बिकॉज वो ऐसी वाला जगह है, मूवमेंट करते समय में कहीं ना कहीं फटने का चांसेस होती है, सूजन अलग होने का चांसेस होता है. डिस्पेरोनिया इज कंपैरेटिवली मोर. सो दैट्स व्हाट आई सेड, लाइक इवन कैथीटर भी डालेंगे ना तो कुछ भी वेजना के थ्रू, इवन हिस्ट्रोस्कोपी कुछ भी आप डाल रहे हैं तो उस समय में पेनफुल होने के चांसेस होते हैं. डिस्पेरोनिया इज लास्ट में जे शेप्ड है, जो फोर्थ वाला जो है जे शेप्ड है. एंड नॉर्मली जे शेप्ड को
यूज नहीं होता है, बट फिर भी सेंटर ऑफ द फोर्सेट से स्टार्ट किया जाता है 1.5 सेंटीमीटर तक सीधा मिडिल लाइन पे। ओके, मिड लाइन पे सीधा, जैसे मीडियल का पोजीशन है 2.5 होती है, बट यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर लेने के बाद थोड़ा से साइड में 5 बजे नहीं तो 7 बजे एंगल में उसको पोजीशन में लगाना पड़ता है, जस्ट टू अवॉइड ओनली द स्पिंटल टेयर। ओके, दो एनल स्पिंटर का जो टेयर है प्रिवेंट करने के लिए। अपोजिशन इज नॉट परफेक्ट ओवर हियर। अल्टीमेटली पकड़ मीन्स लाइक इधर उधर हो जाएगा, तो उस समय में अगेन जॉइनिंग विल बी द प्रॉब्लम ऑफ दैट। ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू दैट। Okay, how it does look like this, right? So this is, as I told you, this is 1.5 centimeter यहाँ पर है ये। This is 7 o'clock angle and this is 5 o'clock angle. Look at this one. Okay, 7 or 5. So this is 7 का है, ये 5 का है. So that's what the difference is. J shaped is 1.5 centimeter सीधे लेके आना 7 और 5 बजे का बचा। What are the procedure is? Procedure is do perineal care with antiseptic solution. सो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसका अलग ही वीडियो बनाया है, तो उसको आप आराम से देख लीजिएगा। बट जस्ट जिस्ट कैसे करेंगे। ओके, जब पेशेंट आ रहा है वहाँ एपिसोटोमी करने के पहले आपको पेरिनियल केयर देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज टॉयलेटिंग, वल्वल टॉयलेटिंग और वेजिनल टॉयलेटिंग वाज आल्सो ऑलमोस्ट सेम। ओके, पहले मॉन्स प्यूबस क्लीन करना पड़ेगा जिगजैग में, और उसके बाद क्लाइटोरिस। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्लाइटोरिस एंड दिस इज अ हुड एक्चुअली, और उसके नीचे में ये फोर्सेट है जो माइनोरा आके यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, राइट? ओके, यू शुड रिमेम्बर दिस। ओके, दिस इज अ सेकेंड स्ट्रोक हो गया। थर्ड स्ट्रोक में एक और दूसरा कॉटन बॉल लेना है और डिप करना है जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, लेफ्ट माइनोरा और राइट माइनोरा, रेबिया माइनोरा, और अगेन एक और कॉटन बॉल अगेन लेफ्ट में, और एक और कॉटन बॉल में राइट लेबिया मेजोरा, देन थाइज में एक कॉटन बॉल, एंड जो अनदर ऑपोजिट साइड में एक और, लास्ट में एक और है यहाँ पर फोर्सेट से लेकर एनस तक आपको क्लीन करना है। ओके, सो आफ्टर द पेरिनियल केयर इन्फिल्ट्रेशन करना है प्लस इंसिशन भी देना है। वो कब देना है? यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ। सो इन्फिल्ट्रेशन करते समय में व्हाट यू आर सपोज टू टेक लाइक इसको 2% जो जाइलेक है ना 1% बनाना पड़ेगा, देन ओनली यू आर सपोज टू यूटिलाइज इट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 5 ml सिरिंज में ले लिया है और 5 ml इसमें हवा भरना है। सॉरी, पहले 5 ml आपको हवा, आई मीन यू हैव टू फिल द एयर। ओके, उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, पहले यहाँ पर स्प्रिट से क्लीन करने के बाद जस्ट पुश इट इनसाइड एंड विथड्रॉ द फ्लूइड। पुश, एयर पुश करने के कारण से वो फ्लो में वापस आ जाएगा। एंड अगेन यू हैव टू टेक इक्वल अमाउंट, 5 ml इसमें ले लिया, 5 ml आपको एनएस लेके उसमें 10 ml हो जाएगा, बट 1% ज़ाइलोकेन बन जाएगा, तो आप लोकल के लिए रेडी है। उसके पहले ओके, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इट, ब्रिंग इट दैट, दिस इज कॉल्ड एज एन इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब अंदर फिल्टर करके अंदर घुसाना। ओके, सो यू कैन डू इट। सो नॉर्मली हम लोग ने क्या देता है, इट इज अ मीडियोलैटरल, राइट मीडियोलैटरल एपिसोटोमी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक आरएमएलई। जैसे यहाँ पर सीधा हमको देना है तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा से लगाना है ऊपर, और सबक्यूटेनियस टिश्यू, थोड़ा मसल्स इधर उधर लगाने के बाद यू हैव टू जस्ट गिव अ दिस इज अ लोकल एनेस्थीसिया, राइट? सो उसके बाद थोड़ा से मसाज कर देंगे तो वो एनेस्थीसिया हो जाएगा। तो पेशेंट को जब भी यूट्राइन कंट्रैक्शंस आ रहा है आप सीधा कट करना पड़ेगा। सीधा कट करते समय में रिमेंबर दिस फिंगर इज इनसाइड, राइट? सो एक उंगली अंदर रहना चाहिए, नहीं तो आपका बेबी के ऊपर भी उसमें कटने का चांसेस होते हैं। सो मेक श्योर जो अंदर वाला शार्प नहीं हो, से ये वाला ऊपर वाला शार्प है, सपोज ये ब्लेड दूसरा वाला होगा तो ये ब्लेंड इस प्रकार की होगा। ओके, समवॉट लाइक दिस। सो बच्चे के ऊपर वो असर नहीं पड़ेगा, बट बात ये सिजर को ये ऐसे यूटिलाइज करके उसको कटना पड़ेगा। एक्चुअली एपिसियोटोमी सिजर्स एक इस प्रकार के होते हैं, एपिसियोटोमी सिजर्स। सो इट विल बी easy for what is that, I'll show you another this thing. I'm not good in art. Okay, this is going to be not good. Okay, fine. सो लेट वी नो अबाउट द लेयर्स कट इन द सीक्वेंस। क्या क्या है इस पे? सबसे पहले वेजिनल वॉल कट जाएगा इस पे, और दूसरा सुपरफिशियल एंड द डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स प्लस एट द सेम टाइम bulbospongiosis part of a levator annulus. Okay, see, look at this one is so this is will be the transverse muscles. Transverse is like probably somewhere here it is transverse muscle somewhere. So okay, yeah, this is here it is. This is superficial transverse muscles, right? So ये मसल कटने के चांसेस होते हैं बल्बोस्पंजियोसिस आसपास में ही, यहाँ पर जो ओरिफिस का सराउंडिंग में है, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ अ levator mसल टू।
वो सेकेंड लेयर बनेगा। और थर्ड लेयर क्या होता है, उसके ऊपर जो मसल के लेयर की जो कवरिंग है वो फेशियो कहते हैं, वो भी है। और ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द पुडेंटल वेसल्स। सो होप यू रिमेम्बर दिस। पुडेंटल आर्टरी, वेसल्स का मीनिंग है ब्लड वेसल्स के बारे में बता रहा है। सो इंटरनल पुडेंटल आर्टरी जो देती है, तो वो भी कटने का चांसेस होती है। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक इफ इट इज गोइंग टू बी आर्टरी ब्लीड, इट इज फ्रॉम द पुडेंटल आर्टरी। कभी कभी हो जाता है, राइट। सो इमीडिएटली यू हैव टू clamp it and you have to suture it. And subcutaneous tissue is the next, the almost जो ऊपर की लेयर होता है, स्किन इज द लास्ट वन। ओके, टाइमिंग ऑफ द रिपेयर और सूचरिंग है, प्लासेंटा एक्सपल्शन होने के बाद ही करना है, उसके पहले नहीं। क्योंकि प्लासेंटा कभी कभी रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन प्लासेंटा। 30 मिनट्स हो गया, प्लासेंटा रिमूव नहीं हो रहे, अगेन उसके एक्सप्लोर करके निकलना है, राइट। सो इन दैट केसेस यू हैव टू रिमेम्बर प्लासेंटा डिलीवरी के बाद ही ये एपिसोटमी सूचरिंग करना है। ओके, सो व्हाट इज सूचरिंग प्रोसीजर इज, ओके। सो पहले पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में इस प्रकार की ले जाना है, और जेनिटल ट्रैक को पूरा क्या इंजरी है क्या देखना पड़ेगा। और उसके बाद वूजिंग है तो गॉस पीस में उसको लगाकर देखना पड़ेगा। सपोज ब्लीडिंग नहीं बंद हो रहा है तो फोर्सेप्स और सूचर से उसको बांधना है। और 3 लेयर्स बाय द पॉलीग्लाइकोलिक सूचर, 3 लेयर्स को हम अभी बताएंगे क्या क्या लेयर है। मोस्टली द वेजाइनल म्यूकोसा एंड देन मस्कुलर, लास्ट में स्किन होती है। सो पॉलीग्लाइकोलिक सूचर और जीरो क्रोमिक एडगेट है, ओके, दिस इज 2010, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो now I mean this is most commonly used in all the government हॉस्पिटल्स। एंड ये अब्जॉर्बेबल है, इसको सूचर कटने का जरूरत नहीं है, वो अपना आप गिर जाता है, ओके। एंड हियर द 3 लेयर्स क्या क्या है। वेजिनल वॉल इज कंटिन्यूस सूचरिंग, कंटिन्यूस सूचरिंग कैसे करना पड़ता है, जस्ट सिंपली लाइक दैट। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये वेजिनल वॉल है, राइट। सो यहाँ देखो तो इंट्रोइटस, ये दोनों को इधर तक आपको कंटिन्यूसली उसको ज्वाइन करवाना है। सो हाउ इट इज, सो सपोज यहाँ पर आपने नीडल लगा के ले लिया और इसको यहाँ पर बांधना है, बांधने के बाद कंटिन्यूसली लेके आके यहाँ पर फिर थोड़ा से बाहर निकालने के बाद इसको दोनों को बांधना है। दिस इज अ कंटिन्यूअस सूचरिंग is. So this is what how it is looks like, okay. So continuous. सो पेरिनियल मसल्स जो है इंटरमिटेंट सूचरिंग, इंटरमिटेंट मतलब बीच बीच में है। सो दिस इज हाउ इट इज, राइट। सो ये एक साइड में ले लिया, ओके, एक साइड में ले लिया और उसके दूसरे में उसको बांध लिया। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। सो लुक एट दिस वन। सो वो लोग अंदर, ये बाहर से स्किन से ले रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। सो यहाँ अंदर स्किन के अंदर से है, ये सीधा लेकर यहाँ पर बांधना है। दिस इज ओनली मसल्स के लिए इंटरमिटेंट है, ओके, बीच बीच में, ओके। यहाँ पर उसको बांधना है, जैसे हम लोग कपड़ा में बांधते रीड नॉट कहते हैं ना, तो एक ऊपर, ओके, एक एक करके बांधते हो, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ओके। सो दिस इज इंटरमिटेंट सूचरिंग फॉर पेरिनियल मसल्स। एंड लास्ट में जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में मैट्रेस सूचरिंग करते हैं, दिस इज कॉमनली यूज्ड एंड दिस इज अ गुड मेथड ऑफ एज आई मीन फाउंड इट फ्रॉम मेनी पेशेंट्स। ये क्या करना पड़ेगा, पहले सुपरफिशियल लेना पड़ेगा, मीन सुपरफिशियल स्किन, उसके बाद डीप अंदर घुस के उसके बाद इसको बांधना है। once again I'm telling you is like यहाँ पर स्टार्ट करना है, ऊपर का स्किन होती है, उसके बाद डीप डीप लेयर यहाँ पर बांध लिया है। अल्टीमेटली what is that, it will form mattress. It's a mattress means like यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से इस प्रकार बंद होती है, right. This is a mattress, that's why it is a mattress suture for the skin as well as the subcutaneous tissue is. So this suture is wrong actually. I mean the suture looks like that only, but thing is superficial ऊपर और अंदर से deep. सो डीप वाला तो दिखाई नहीं देगा, ओनली सुपरफिशियल दिखाई देगा। सो प्रोबेबली द suturing will be looking like this. Okay, remember one thing is I have found many people, many medical people, वो भी स्टूडेंट्स लोग है, लर्नर्स है, ओके, मेडिकल मिडवाइफ्स नहीं बोल सकते, सभी लोग को मैंने कई लोग को देखा जो ये जो नीडल, ओके, दिस इज अ होल्ड नीडल, राइट। सो ये नीडल को कई लोग ग्लव्स पकड़ के वो समय में ढूंढते, एक तो ब्लीडिंग होती है, बहुत ढेर सारी ब्लीडिंग होते समय में, वो नीडल पकड़ते समय में ग्लव्स इतनी पसीना आएगा, बिकॉज यू हैव टू कीप द टेम्परेचर ऑल्सो एटलीस्ट 28 प्लस और -2 डिग्री सेल्सियस वो रूम टेम्परेचर होता है। वो समय में क्या करते हैं, नीडल पकड़ के वो खींचता है। आई ऑलवेज एडवाइज दी स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट hold this needle by hand. This is a needle holder
and this is what the dissecting forceps you call as a thumb forceps also. थंब फोर्सेप्स से स्किन पकड़ो और उसी के पहले इधर से आप यहाँ से लगा रहे हो, सबसे पहले नीडल होल्डर यहाँ पकड़ना पड़ेगा, मैंने इन बिटवीन इसमें स्ट्रांगली पकड़ना पड़ेगा। वो पुश करने के बाद यहाँ आने के बाद नीडल होल्डर से पकड़ के खींचना है। You are in the starting point, so remember this is a practical issues I faced from the students. सिंपली आप यही काम आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेक सम नीडल्स विच इज लाइक आउट ऑफ एक्सपायरी और समथिंग रहेगा, तो आप एक सैनिटरी आई मीन्स लाइक एक पैड, ओके नॉट सैनिटरी पैड, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रेसिंग पैड, एक और पैड यहाँ पर पास पास में रखो। सो यहाँ नीडल उठाओ, होल्डर पकड़ो, नीडल पकड़ के यहाँ पर खींचो उसको और नीडल होल्डर से एट द सेम टाइम होल्ड विद दिस डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, आराम से हो जाएगा। इट इज नो वरीज, इट विल बी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम तो होती है, बट बात ही धीरे धीरे सीख गया, यू विल बी लाइक एक्सेलेंट इन डूइंग इट। डोंट होल्ड, आई मीन ये हाथ में पकड़ के मत खींचना, अदरवाइज द पेशेंट्स आर पॉजिटिव है, पता नहीं चलता है स्टार्टिंग में, उन लोगों को तो नेगेटिव ही आता है, कभी कभी सब काम खत्म होने के बाद पता चलता है ये पॉजिटिव पेशेंट्स है। मेक श्योर यू आर गोइंग टू होल्ड इट इन अ प्रॉपर वे, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, इज अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग यू दिस एडवाइस ऑन दिस। ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करेगा, ड्रेसिंग आफ्टर द यूरिनेशन इज से हर समय में यूरिन पास करने के बाद, नहीं तो डिफिकेशन पोटी करने के बाद उसको क्लीन एंड ड्राई रखना है। ड्राई इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके, बिकॉज कहीं भी गीला रहेगा दैट विल गिव अ राइज टू बैक्टीरियल ग्रोथ, राइट। उसको प्रिवेंट करने के लिए, ड्राई रखने के लिए यू आर सपोज टू कीप इट, you have to ask them to change the sanitary pads every 6 hours whenever it is necessary, okay, 6 hours कभी भी चेंज करना ही है, 6 घंटा तक वो सेम पैड से वो बहुत बड़ा इन्फेक्शन फिर वापस जाने के चांसेस होते हैं, बिकॉज उस समय में प्लासेंटा डिलीवरी हुआ है, अंदर पूरा जैसे बोलते हैं ना गाँव बन गया है ना, बिकॉज इट इज नॉट हील्ड इमीडिएटली। सो एट द सेम टाइम सैनिटरी पैड में गंदगी रहेगा तो अल्टीमेटली वापस वो इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेल देम हर 6 घंटे में उसको सैनिटरी पैड बदलना पड़ेगा, एंड वेन एवर इट इज नेसेसरी, इफ इट इज गोइंग टू बी वेट यू हैव टू चेंज दैट। एंड पेन रिलीफ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट कंप्रेस है, वो स्वेलिंग को डिक्रीज करता है। ये हर जगह में यूज नहीं होती है बट कुछ जगह में यूज होती है, बट बात है मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी इज गुड फॉर ऑल द स्वेलिंग्स, इन्फ्लेमेशन कहीं भी हो रहा है तो उसका है, उसका अलग ही वीडियो बना रहे हैं, लिंक बाद में दे रही हूँ। बट बात ये है, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज लाइक, एक कप में वो पूरा लाइक यू टेक सम हॉट वाटर, अदरवाइज यू सम पीपल टेक ग्लिसरीन, इट डिपेंड्स अपॉन दैट, ओके। सब गर्म पानी में ये जो बोल को उसमें डिप करने के बाद उसमें थोड़े से पानी गर्म करने के बाद, दिस इज द मैग्नीशियम सल्फेट जो सॉल्ट है, राइट। उसमें कभी सॉल्यूशन में आती है, वो बना रेडीमेड आती है, कभी कभी सॉल्ट में भी आती है, मार्केट में मिलता है। सो उसमें थोड़ा आई थिंक 2-3 पिंच उसमें डालने के बाद उसको मिक्स करने के बाद गॉस पीस उसको लगाने के बाद वो अच्छा स्क्वीज करने के बाद, मतलब निचोड़ने के बाद, उसको सोल्यूशन निचोड़ने के बाद वहां पर लगा दिया, वो सूजन कम करेगा। कभी कभी किसी किसी को सूजन हो जाता है, उसमें ये होता है। कहीं स्टडीज हुआ है, ओके, कभी गरम रखो, आई टोल्ड यू, ये गरम पानी एक बड़ा कटोरी में ले लिया और इसमें भी थोड़ा अच्छा स्टेरिल मतलब नॉर्मल सलाइन ले लिया, इसको भी अच्छे से वो गर्म पानी में रख दिया, ओके। सपोज एक बोल ले लो, बोल लेने के बाद इसमें गर्म पानी रखो, गर्म पानी रखने के बाद ये बोल उसमें रख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा एनएस ले लिया, कुछ भी, आई मीन यूजुअली दे टेक डिस्टल वाटर ओनली। सो उसमें गर्म कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, उसके बाद दे what do they do is they soak it and they give it wherever the swelling is, okay। so यहाँ पर वो एपिसोडिक सूचर में देने से स्वेलिंग कम हो जाती है, जिसका इन्फेक्टेड हो। स्टार्टिंग में थोड़ा स्वेलिंग तो होती है बिकॉज इट इज आई मीन कहीं सूचर करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्विचिंग तो होता है, बट बात इट शुड नॉट बी मोर। एंड अदर वन पार्ट ऑफ पेन रिलीफ इज इंफ्रारेड रेज एप्लीकेशंस, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया कैसे यूज करना है। जिस्ट कैसे देना पड़ेगा, पेशेंट को जो यूरिन का आने के बाद लेटाना पड़ेगा लिथोटोमी पोजीशन में, 40 से 50 सेंटीमीटर दूर में इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रारेड लैंप लगाने के बाद 10 मिनट तक पेशेंट के साथ में आपको रहना पड़ेगा, गर्म है कुछ है तो हटाना है। दिस इज वेरी वेरी effective for this one is I encourage people to get this infrared light, okay। I'll give you this link also, like कहाँ मिलता है क्या मिलता है।
एंड दिस इज इट्स इंफ्रारेड, इट्स नॉट ओनली फॉर एपिसियोटमी के, हमारा पर्सनल के लिए भी ले सकते हैं, मेडिकल पर्सनल आई डू हैव इट। कभी कमर में दर्द होता है, कभी नीज में दर्द होती है, ओके, इवन आई हैव ओल्ड एज पीपल इन माय होम, सो आई यूटिलाइज दिस वन। इट्स लाइक अ गुड, इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो, लाइक वुंड हीलिंग में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट मैंने देखा है इसको। जिस पेशेंट को दिन में 2 बार मिला है, सो एपिसियोटमी जल्दी से जल्दी ठीक होते हुए मैंने देखा। ओके, एंड पेन रिलीफ इज सिट्स बाथ, दिस ऑल्सो देयर इज अ लिंक, मैंने एक वीडियो बनाया है। और सिट्स बाथ कैसे लेना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द बुक सेज दैट, एंड इवन WHO ऑल्सो एंड मेनी पीपल हैव सेड दिस सिट्स बाथ इज वेरी गुड, क्योंकि वो बहुत अच्छा है, वो पेन रिलीफ होता है करके। दिस इज द वे दैट इज, यूजुअली शी इज नॉट सपोज टू सिट डाउन, दिस टब हैज टू बी ऑन द स्टूल, ओके, स्टूल के ऊपर ये टब होगा, तो ये नीचे रहेगी, तो पैर उसको जमीन में नहीं होगा, यहाँ पे एक स्टूल होगा। अदरवाइज शी हैज टू सिट कंफर्टेबली, एंड देन एटलीस्ट 5 to 15 मिनट्स तक रहेगा, तो वो सूजन भी कम हो जाता बोलता है, मीन स्टडीज हैव प्रूव्ड। Personally, I really can't encourage this because I am not very sure वो suture कितना tight है कितना loose है, okay? Usually 24 hours के बाद ही all this measures has to be taken, whether it is going to be magnesium sulfate therapy, infrared lamp का जो light है, everything. I mean, infrared lamp can be given at least, I mean, on the day itself, on the evening, वो 12 hours के अंदर में दे सकते, कोई problem नहीं है, but बात ये है, बट बाकी चीजें इट इज हैव टू बी ऑन द नेक्स्ट डे ओनली, ओके। सो बट आई डोंट एनकरेज दिस बिकॉज वो सूचर टाइट नहीं है, सो इन दैट वे, ओके, सपोज अंदर पानी घुस गया, अगेन देयर विल बी इन्फेक्शन ग्रोथ चांसेस होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस, बट द बुक सेज, देयर रिसर्च सेज इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। और पेन रिलीफ हॉट वाटर बॉटल भी एप्लीकेशन भी ले सकता है, दिस जस्ट अ पेन रिलीफ, सो दिस विल बी मार्केट में मिल जाती है आराम से, 200-300 रुपये में मिल जाता है। इट इज एज आई टोल्ड यू लाइक अ मेडिकल पर्सनल, इफ आई हैव सम प्रॉब्लम्स इश्यूज लाइक कमर में दर्द है, किसी को भी डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो वो भी ये वाला लेके रह सकता है। आई विल गिव द लिंक ओवर देयर इन द description, you can have a look at that and you can purchase also if you want it, and you can एनी टाइम एट एनी मोमेंट, हम लोग को बहुत जरूरी पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी 5 मिनट तक इसको गर्म होते हैं तो आराम से रख सकते हैं। सो हाउ वे विल यू कीप दिस वन एस, लाइक यू कांट कीप इट डायरेक्टली ऑन द पेरिनियम, बट बात ये है दोनों थाइस के बीच में रखेगा। आई थिंक द गुड सर्कुलेशन दैट वाज इफेक्टिव, आई हैव फाउंड इट विद मेनी पेशेंट्स आल्सो, बट आई डोंट डू अ स्टडी, बट दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी आफ्टर 24 आवर्स, बिकॉज 24 आवर्स के पहले आपने दे दिया, गरम गरम दे दिया, तो ब्लीडिंग होने का चांसेस होता है, इट्स ओनली आफ्टर द 24 आवर्स। सो आई डोंट एनकरेज दिस वाटर बॉटल, इसमें पूरा पानी भरो, पानी भरने के बाद लीक हो जाएगा पेशेंट के ऊपर, फिर ब्लिस्टर्स आने लगेगा, सो आई डोंट एनकरेज दिस वन, बट स्टिल पीपल से हॉट वाटर बॉटल इज ऑल्सो गुड। सपोज उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो ये पेप्सी बॉटल काली वाला बॉटल में पूरा पानी भरने के बाद कपड़ा पूरा पेट कर उसको दे सकता है। सो वेर एवर द हॉट वाटर बॉटल, ओके, इवन दिस ऑल्सो लाइक कपड़ा से आपको आराम से रोल करके लगाना पड़ेगा, बिना कपड़ा से उसको, यू कांट कीप इट ऑन एनी प्लेस, इट इज ओनली आफ्टर 24 आवर्स यू आर सपोज टू यूज दैट, ओके। इसमें अच्छे से गर्म पानी करके कपड़ा से लगा कर वहीं पर लगा देगा, आई मीन इट्स लाइक थाइज में ही थोड़ा से आसपास में, एपिसोडमी के साइड में आसपास में इसको लगा दिया, तो वहाँ अड़ोस पड़ोस में तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली वुंड हीलिंग ऑल्सो विल बी बेटर। एंड द नेक्स्ट वन इज रेस्ट, रेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलना नहीं है ज्यादा तरह से, ओके, भारी सामान उठ के सीढ़ी चढ़ना या ये करना, सो जस्ट टू अवॉइड एटलीस्ट फॉर 10 or 15 days, बाय द टाइम 7 दिन तक उसको नॉर्मली, आई हैव फाउंड मेनी पीपल विद इन 10 days उसको ठीक हो जाता है। 7 दिन में वो पूरा मतलब एकदम ड्राई रखेगा, एंड इट इज बीन, आई मीन रेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, ओके। नो क्रॉसिंग ऑफ द लेग्स, ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैठते समय में इस प्रकार की क्रॉस करते हैं, फिर पैर को फैलाता है, सो अल्टीमेटली वो टाका टूटने के चांसेस होते हैं। लाइक वन थिंग इज लाइक वी कैन एनकरेज इस प्रकार की बैठना और लेटना है, राइट, और पैर को दोनों को जोड़कर बैठना है, तो इस प्रकार की करेगा ऑलमोस्ट वो टाका फट, मतलब लाइक यू डोंट स्ट्रेच इट। सो एक टग ऑफ वॉर होता है ना, तो टग ऑफ वॉर क्या होता है, तो यहाँ पर खींचता है, यहाँ पर खींचता, तो पैर हम दोनों यहाँ, इस पैर को यहाँ करेंगे, इस पैर को यहाँ करेंगे, तो टाका थोड़ा बहुत खींचने का होता है, तो दैट्स व्हाट इज आई वांटेड टू एडवाइज इज लाइक इस प्रकार पैर जोड़कर उठना बैठना इस प्रकार के करेगा फॉर 7 days or 10 days, आई थिंक इट विल बी मोर बेनिफिशियल इट इज। आई नो लाइक स्टूल पास करने समय में भी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी abundantly it is going to be good. हाई प्रोटीन डाइट, एक्चुअली ये ज़्यादा लोग एनकरेज मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट आई डू फोकस ऑन दिस हाई प्रोटीन डाइट फॉर एवरी सूचर इट इज गोइंग टू बी।
किसी को भी सूचरिंग हुआ, थोड़ा से हुआ, ज्यादा हुआ, इंजुरी हुआ, कहीं भी हुआ, हाई प्रोटीन डाइट इज मस्ट। आप कुछ भी ले रहे हैं, इफ यू गोइंग टू बी सॉरी, एक गलती से आ गया है, इफ यू गोइंग टू बी अ वेजिटेरियन, you don't have to take all those things. Okay, I'm sorry. So I did not get any other pics, urgently इसमें बना दिया. Okay, so मूंगफली बहुत अच्छा प्रोटीन है. Okay, पुअर आलमंड्स कहते हैं ये, आलमंड, बादाम इज गुड, मटर, कोई भी दाल होता है, लेग्यूम्स कहते हैं, राइट, वो चना दाल हो, कुछ भी दाल हो, मूंग दाल हो, कुछ भी हो, स्प्राउट्स बना के खा रहा है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. न्यूट्रेला हैज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रेला ले सकता हूँ. ओनली 2-3 वीक्स इज लार्ज है. प्रोटीन, कितनी इंजुरी, कितनी ब्लीडिंग है, सब कुछ उसको ठीक करने के लिए आपको कुछ ताकत चाहिए ना, तो प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, राइट. सो क्या, दूध की चना, राइट, पनीर, दैट्स व्हाट यू कॉल इट एज, राइट. सो जो भी प्रोटीन लग रहा है, प्रोटीन लेना है, फैट नहीं बोल रही हूँ, प्रोटीन. इट्स प्रोटीन रिच डाइट. आई टेक अ वीडियो ऑन दिस लेटर ऑन, आई गिव अ लिंक इन दिस लेटर ऑन. So protein diet is more important for all patients who have undergone surgeries. So यहाँ भी surgery type ही episode में. So I do encourage this high protein diet. Okay, and finally, assist for any infections of Rida. What is Rida is? Suppose every time you're going to tell the patient, teach करो उसको क्या करना है. R for redness, or E for ecchymosis. Okay, and E for edema, again D for discharge, और लास्ट में इज अप्रोक्सीमेशन. ए फॉर अप्रोक्सीमेशन, अपोजिशन और अप्रोक्सीमेशन, अपोजिशन इट इज, राइट. सो ऑलमोस्ट ये. ओके, व्हाट इट इज, आई टेल यू. रेडनेस, सो इन्फेक्शन होगा तो लालपन होगा, तो उसको रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंटीबायोटिक फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और देखना पड़ेगा, राइट. एकेमोसिस फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को भी मार रहे, ओके, ऊपर से मार रहे, पंच मार रहे, मारते समय में क्या होगा, ऊपर ऊपर क्या होगा, स्किन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर से ब्लीडिंग होके यहाँ पर पूरा कालापन दिखाई देगा. सो दैट इज व्हाट द एकाइमोसिस इज. सो अंदर से हेमाटोमा होने का चांसेस होते हैं ब्लीडिंग होके. सो दैट विल सी एज अ रेड ब्लूनेस, आई मीन ब्लूइश ब्लैक. एडिमा मतलब सूजन, डिस्चार्ज हो सकता है, वहां पर ब्लीडिंग हो ना तो कोई डिस्चार्ज हो. अप्रोक्सीमेशन का मतलब दोनों दोनों, फॉर एग्जाम्पल कटा है तो सीधा बीच में कटा, राइट, इसका बीच में कटा, तो एक साइड इधर आ जाएगा, एक साइड इधर आ जाएगा. सो दोनों इक्वल में होना चाहिए, ये नहीं एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, तो इस प्रकार की अपोजिशन सही नहीं है, वो जुड़ेगा भी नहीं. सो इन दैट केसेस इट हैज टू बी रिपोर्टेड. रिपोर्ट करने के बाद उसको रीसूचना के लिए डॉक्टर करेगा. ओके, रिमूवल ऑफ स्टिचेस, एज आई टोल्ड यू, जीरो क्रोमिक कैटगेट और वाइक्रल कॉमनली यूज किया जाता है. बट बात ये, यहाँ पर सिल्क और नायलॉन जब यूज किया जाता है, स्टिचेस को छठवा दिन में निकलना पड़ेगा. अदर दैन दैट अब्जॉर्बेबल वाइक्रल और एज वेल एज व्हाट इज दैट क्रोमिक कैटगेट, ये दोनों को जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो खुद गिर जाता है. फाइनली व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एपिसोटमी. इमीडिएट होती है, एक परमानेंट होती है. इमीडिएटली क्या होता है, एक्सटेंशन टू द इंसिशन टू द रेक्टम इज, ओके, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. सपोज बच्चा यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर म्यूकस और टेयर हो रही है, बट यहाँ पर जो पेरिनियल बॉडी मसल सब कुछ टेयर हो रही है, ओके, 3rd डिग्री में यहाँ पर हो जा रहा है, एक्सटेंशन सीधा यहाँ पर पूरा स्पिंटर में भी हो गया. अल्टीमेटली पेशेंट्स फीकल इनकॉन्टिनेंस, नॉन स्टॉप वो पास करते रहेगी स्टूल को. नेक्स्ट इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन हो गया, ये तो बार्टोलिन सिस्ट है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन समवेयर और इंजरी और समथिंग लाइक दैट. सो इन्फेक्शन होते समय में टेम्परेचर ऑफकोर्स रेज होगा ही होगा, राइट, और डिस्चार्ज भी आएगा, बैड स्मेल आएगा. ओके, व्हाट यू कॉल एज अ बैड स्मेल इज, इट इज ऑफेंसिव स्मेल कहते हैं, ऑफेंसिव स्मेल, अदरवाइज यू कॉल इट एज बैड ओडर भी कहते हैं, राइट, और फॉल स्मेलिंग भी कहता है. सो इस प्रकार की आएगा, तो यूजुअली जो डिलीवरी के बाद थोड़ा से वो फिशी स्मेल आएंगे, दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल. बट बाकी बदबू बहुत आते हैं, तो इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड, इट हैज टू बी एक्सप्लोर्ड. एक्सप्लोर्ड मतलब अंदर क्या है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा. इफ इट इज मॉइस्ट और रेड, अगेन इट हैज टू बी रिपोर्टेड. स्वेलिंग है, पेन है, दैट हैज टू बी रिपोर्टेड. दीज आर द साइंस ऑफ द इन्फेक्शन इज, that is to be reported. The next one is wound dehiscence. Dehiscence का meaning है गैपिंग. सो जहां पर यहाँ पर फटे थे, तो ये क्या होगा, बीच में गैप है, ये जॉन नहीं हो रहा है. सो ब्रूइसिंग, आई टोल्ड यू राइट, एकाइमोसिस. सो दिस इज व्हाट द बीच में यहाँ से फट गया होगा, हेमाटोमा फॉर्म हुआ होगा. दैट्स व्हाट एकाइमोसिस विल बी सीन एज.
ओके, वो डिफिशिएंसी देख लिया। वल्वल हेमाटोमा, ओके, इस पेशेंट को पहली बार हेमाटोमा था, उसको पूरा एक्सप्लोर करने के बाद लुक एट दिस वन आल्सो, ओके, उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद उसके बाद रीसुचरिंग किया। हेमाटोमा मींस इट इज अ कलेक्शन ऑफ द ब्लड अंडर द स्किन नाउ व्हाटएवर इट इज, ओके, दिस इज अंडर द वल्वा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेमाटोमा, वल्वल हेमाटोमा। रेक्टो वेजिनल फिस्टुला, ओके, जब बेबी जब डिलीवरी होते समय में हो सकता है बेबी का हेड यहाँ पर बहुत देर हो, तो ये रेक्टम और ये बीच में, सो व्हाट इज फिस्टुला? इज फिस्टुला इज नथिंग बट abnormal कनेक्शन, abnormal कनेक्शन कहते हैं इसको, राइट। सो abnormal कनेक्शन होता है तो क्या होगा पेशेंट को यहाँ पर जो स्टूल भी यहाँ पर वेजिना में आने के चांसेस होता है, दैट विल बी मोर प्रॉब्लमैटिक। सो एपिसोडमी करते समय में कभी कभी होने का चांसेस होता है, ओके। सो एनल स्पिंक्टर इंजुरी इन केस यहाँ पर, ओके, स्पिंक्टर में यहाँ पर इंजुरी हो गया, समवेयर इस कनेक्शन हो गया इसका, तो क्या होगा? दिस इज नॉट लेटस, इट इज अ फ्लेटस, it is flatus, FLATUS। फ्लेटस मीन्स इट इज अ गैस, ओके। गैस जो है बाहर निकलती है, ऑफिसेस भी और इनकॉन्टिनेंस भी होने का चांसेस होता है, ओके। इनकॉन्टिनेंस यहाँ पर स्पिंक्टर हो गया, सो मे बी कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड ऑल्सो, यहाँ पर इनकॉन्टिनेंस भी गैस भी बार बार आते रहेगा, सो इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक, दैट्स आल्सो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। फाइनली नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस मीन्स नेक्रोटाइज होने के बाद इस प्रकार की काला काला हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस? नथिंग बट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जल्दी से जल्दी स्प्रेड होगी, लास्ट में डेथ में भी पहुंचने का चांसेस होता है। दिस मोस्टली अकर्स इन द डायबिटीज मेलिटस मदर्स और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके, HIV पेशेंट हो, बिकॉज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कम्स अंडर दैट, राइट, ओके, आई मीन HIV comes under the immunocompromised, ओके। एंड अल्टीमेटली फाइनली परमानेंट में कभी कभी पेरनियल लैसरेशंस होने के जैसे टेयर है, ये 3rd डिग्री टेयर है। देखो लैसरेशंस मतलब एक्चुअली माइल्ड लैसरेशंस होते, थोड़ा बहुत छील जाना, बट ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया, राइट। सो दिस बिकम अ टेयर, सो दैट इज आल्सो अ चांस। एंड डिस्पेरोनिया, as I mentioned you earlier, so there are chances tightening of that cervix, अंदर में कुछ भी प्रोसीजर करें प्रॉब्लम होने का चांसेस है। स्कार एंडोमेट्रियोसिस, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस नथिंग बट एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू है, ओके, एंडोमेट्रियल टिश्यू कहाँ पर रहेगा, कहाँ रहती है एंडोमेट्रियल टिश्यू? एंडोमेट्रियम में ही रहता है, बट अदर देन दैट ये कहीं भी और लाइन करता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सो एंडोमेट्रियम का काम क्या है? यूजुअली मेंसेस का समय में एंडोमेट्रियम से शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है मेंसेस का समय में, राइट। सो अभी ये एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और भी हो जाए तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली मेंसेस का समय में वहां भी ब्लीडिंग होने लगेगा। सेम थिंग यहाँ भी है। सो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू कहाँ पर है? दिस इज वेरी रेयर एक्चुअली, बट स्टिल यहाँ पर देखो पूरा एंडोमेट्रियल टिश्यू और मेंसेस का समय में इस प्रकार की ब्लीडिंग होगा, okay. So this is a permanent and this is very rare actually, but this has been found in some patient, that's what it was included in complications. So I hope these are the episiotomy complications, sometimes complication भी पूछा जाता है। So hope you understood. If you have any doubt you can comment में आप लिख सकते हैं, and if you wanted to know some other things also you can do that. So